Hey, what's up, guys? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to read the remaining part of the story and will explain you also the same story. The story which read The Journey to the Center of the Earth, written by Jules Verne. So as you know that this story was actually read by two people, a German professor of geology and mineralogy named Leidenbrock and his nephew Axel Leidenbrock. Actually, they were reading the novel of Ernest Seckensham, who was a scholar from 16th century and who had traveled to the center of earth with his one accompanied person, that was Hans. He was the Icelandic guys who has more knowledge about the Iceland. In the first part of this story we have read how the professor himself and Hans were traveling across the seas. They have been passed through the beds of bones, and then they saw many marvelous things around there. They have seen the vegetation, they have seen the gloomy areas, they have seen the, you can say, area which was fully enlightened, and there were no shadows of the man casted anywhere. They have seen the trees which were, colorless, and you can see they have seen how gigantic groves were there. They have been through those groves also, and they were feeling so scary, but still they were having lots of excitement in them to explore the new things, since they were traveling to the center of the earth. So now in this part we will continue how they felt like whatever they have read in botany is now it is getting ignored, what they are watching now in front of their eyes. So in this para, suddenly I stopped short and restrained my uncle. The long spreading light enabled me to see the smallest object in the distant copses. I thought I saw. No, I really did see with my own eyes immense gigantic animals moving about under the mighty trees. Yes, they were truly gigantic animals. A whole herd of mastodons, not fossils but living, and exactly like those discovered in 1801 on the marshy bank of the Great Ohio in North America. So when when Hans saw these all things, then he stopped actually the professor, to whom he is referring as uncle, and since दिस स्प्रेडिंग ऑफ द लाइट, एक्चुअली जो लाइट निकल के आ रहा था उसने दूर में जो चीज़ें दिख रही थी, जो काफ़ी दूर में थी और छोटी छोटी दिख रही थी, वो अब क्लियरली दिखना शुरू हो गया था. जो भी चीज़ें हैंस ने देखा उसको एक्चुअली में बिलीव नहीं हो रहा था उसके अपने देखे हुए चीज़ों के ऊपर, कि इतना बड़ा, इतना विशालकाय जानवर जो इतने बड़े बड़े विशालकाय पेड़ों को उखाड़ के या उठा करके एक जगह से दूसरे जगह ले जा कर के फेंक रहे हैं. ये फॉसिल्स नहीं थे. दिस वर नॉट द फॉसिल्स. फॉसिल्स इज द dead cells of any animals. These were not the fossils, but it was actually living and exactly like those discovered in 1800. उसको ये एहसास हो रहा था कि एक्चुअली में जीवित है, और ये वही जाइगेंटिक एनिमल्स है जिनकी डिस्कवरी 1801 के दौरान हुई थी. 1801 ईस्वी में हुई थी. And actually he calls here the herd of
mastodons. Now what is mastodons? Mastodons means giant elephant, like you can say mammals that flourished from ancient time. पुराने समय में बहुत विशालकाय हाथी जो होते थे, मैमल्स टाइप के, उस तरीके का जानवर इन्होंने देखा था, और जिसके बारे में यह बताया गया कि 1801 में ओहायो इज़ स्टेट इन नॉर्थ अमेरिका, उसके मार्शी बैंक पे इसको पाया गया था, इस जानवर को देखा गया था. Now let me read the next paragraph and explain you. Yes, I could see the enormous elephants whose trunks were tearing down large paws and working in and out the trees like a legion of serpents. I could hear the sounds of the mighty tusks uprooting huge trees. The boughs crackled, and the whole masses of leaves and green branches went down the capacious throats of these terrible monsters. That wondrous dream when I saw the prehistorical time vivified, when the tertiary and quaternary periods passed before me, was now realized. So in this para, the narrator is saying, वह बतलाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे वह इन विशालकाय हाथियों को देख पा रहा था, देख सकता था. वो हाथी जो है अपने विशालकाय जो टस्क होते हैं, ट्रंक होते हैं, उससे कैसे बड़े बड़े लाइक ब्रांचेस जो ट्री के थे उसको फाड़ रहे थे. टीयरिंग, इट वाज अबाउट टू टीयर अपार्ट. एंड जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, जैसे ये बिल्कुल उनके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल हो. और उनको ये आवाज़ें जो उसके आसपास के सराउंडिंग से आ रही थी, पेड़ के उखड़ने की आवाज़, कैसे वो अपने टस्क के मदद से दे वर जस्ट अपरूटिंग इट, उसको उखाड़ रहे थे ज़मीन से. साथ ही साथ वो जो बॉज क्रैकल्ड हो रहे थे, जो बॉज के अंदर में दरारें पड़ रही थी, वो पूरा का पूरा ऊपर से टूटने के बाद चाहे वो पत्तियों का भार हो या फिर ग्रीन ब्रांचेस का जो वज़न होता है, वो सारा एक बड़े स्पेस के साथ उनके थ्रॉट्स से होते हुए नीचे आ रहा था. ये जो टेरिबल मॉन्स्टर्स थे उसको ईज़िली उखाड़ के फेंक रहे थे. और यह बिल्कुल हैंस को उस सपने के जैसा, उस ड्रीम के जैसा प्रतीत हो रहा था, जो उसने प्री हिस्टोरिकल टाइम कैसे अपने आप को रिवाइव करता है, कैसे अपने आप को वापस दोबारा सामने लाता है, जो कि उसने अपने ड्रीम में देखा था, जब टर्शियरी जो थर्ड स्टेज के जो मतलब चीज़ें हैं, जो घटनाएं हैं, वो अभी क्वाटरनरी पीरियड्स जो बीत चुका है, उन सारे समयों के जो घटनाएं हैं वो उसके आँखों के सामने अभी इस वक्त रियलाइज़ हो रहा था, दिख रहा था. And there we were alone, far down in the bowels of the earth, at the mercy of its ferocious inhabitants. My uncle paused, full of wonder and astonishment. "Come," he said at last when his first surprise was over. "Come along, my boy, and let us see them nearer." "No," replied I, restraining his efforts to drag me forward. "We are wholly without arms. What should we do in the midst of the flock of gigantic quadrupeds? Come away, uncle, I beg you. No human creature can brave the ferocious anger of these monsters." "No human creature," said my uncle, suddenly lowering his voice to a mysterious whisper. "You are mistaken, my dear boy. Look, it seems to me that I behold a human being like ourselves, a man." I looked, shrugging my shoulders, decided to push incredulity to its very last limit, but I was compelled to yield to the weight of visual demonstration. And this para, actually, Hans is quite scared. वह काफ़ी डर चुका है, और वो उसको अब यह रियलाइज हो रहा है कि इन विशालकाय ताकतवर जो यहाँ के इन्हेबिटेंट्स हैं, उनके सामने इनका जो
साहस है, हिम्मत है, वो कुछ भी नहीं है। एंड कुछ पल के लिए वह बिल्कुल स्तब्ध होकर सोचता है और अंकल को रोकता है। अंकल मीन्स द प्रोफेसर एंड सेकंड सम उनको रोकता है और बोलता है कि लाइक चलो अच्छा है, अभी ये जो चीज़ उन्होंने देखा है वो एक्चुअली एक सरप्राइज़ था। लेकिन जो प्रोफेसर थे उसने और हैंस को सरप्राइज़ किया, यह बोलते हुए कि चलो आगे चलते हैं और उनको नज़दीक से देखते हैं। बट हैंस ने रिप्लाई किया नहीं, उसका बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है और उसका बिल्कुल भी मन नहीं। इसी बीच प्रोफेसर जो है उसको एक्चुअली ड्रैग करते हुए, खींचते हुए आगे ले जा रहे होते हैं। एंड ड्यूरिंग दैट ड्रैगिंग, हैंस जो है वो उनसे प्लीड कर रहा है, उनसे मिन्नतें कर रहा है कि हम बिना हथियार के, बिना आर्म्स के हैं और हम लोग इन gigantic quadrupeds means you can say it is, I'll tell you, hold on just 1 second. quadrupeds is like विशालकाय जो नरभक्षी जानवर हैं, या उनको quadrupeds बोला जाता है। चाहे तो उनसे कैसे हम पार पा सकेंगे या उनसे कैसे हम विजय पा सकेंगे, लड़ पाएंगे। नाउ कम अवे अंकल, वो लिटरली उनसे भीख मांगता हुआ, उनसे मिन्नतें करता हुआ बोलता है कि चलिए अंकल हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंसान बिल्कुल नहीं है, ह्यूमन क्रिएचर कोई दिख नहीं रहा है जो इतना ताकतवर हो, जो इन विशालकाय ताकतवर जानवरों के, राक्षसों के गुस्से को संभाल पाया। नाउ अंकल उससे बोलते हैं नो ह्यूमन क्रिएचर। वो एक्चुअली क्वेश्चन के टाइप में उससे पूछते हैं कि तुम्हें कोई ह्यूमन क्रिएचर नहीं दिखा, चलो मैं तुम्हें यहाँ पे, वो अपनी आवाज़ को थोड़ा धीमे से एक मिस्टीरियस वे में विस्पर करते हुए बोलते, तुम गलत हो माय डियर बॉय, यू आर रॉन्ग, यू आर मिस्टेकन, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एंड व्हाट they saw after that was unbelievable. There was a man who was like ourselves. उसका जो स्ट्रक्चर था फेस का और कंस्ट्रक्शन बॉडी का था, वो सेम लाइक एज अ मैन था। और यह बात जो है हैंस को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो पा रहा था, बट स्टिल उसके सामने जो विजुअल्स डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था वो दिख रहा था, उसको वो यकीन करना पड़ा। नाउ yes, not more than a quarter of mile off, leaning against the trunk of an enormous tree, was a human being, a man of these subterranean regions, keeping this innumerable herd of mastodons. Yes, it was no longer as fossil, but a giant capable of guiding and driving these giant monsters. His height was above 12 feet. His head, as big as the head of a buffalo, was lost in a mane of matted hair. It was indeed a huge mane, like those which belonged to the elephants of the earlier age of the world. Now in this para I'll explain you. फिर उसके बाद जो है उनको जो विजुअल्स सामने दिख रहे थे प्रोफेसर और हैंस को, वो सामने में बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था कि 1/4 माइल के दूरी पे जो है एक ह्यूमन इंसान जो है, वो भी आई थिंक बहुत बड़ा था हमारे साइज से। एक ट्री, यू कैन सी इन द पिक्चर लाइक ही वाज लीनिंग टुवर्ड्स द ट्री। एंड इस सबटेरेनियन रीजन में वही एक ऐसा दिख रहा था जो इन विशालकाय मैस्टोडॉन्स को संभाल सकता था, मैस्टोडॉन्स को हैंडल कर सकता था। और हाँ, यह उनके समझ में आ चुकी थी यह बात कि ये जो जाइंट जो फॉसिल्स हैं, ये एक्चुअली जाइंट फॉसिल्स नहीं है, ये लिविंग थिंग है। और इस जाइंट को हैंडल करने के लिए एक जाइंट मैन भी जो है इस सबटेरेनियन रीजन में प्रेजेंट है।
और उसका जो बनावट है, इट इज़ नाउ, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो लुक है, इट इज़ नाउ डिस्क्राइब्ड हियर. नाउ लाइक how what type of hair he was having, and what type of look he was possessing. और ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि वो अर्लियर एज में, जिस एज में एलिफेंट काफ़ी विशाल विशाल हुआ करते थे, उन्हीं के हाइट के लगभग बराबर हाइट का ये इंसान भी उस एज में हुआ करता था. इन हिज हैंड वॉज अ ब्रांच ऑफ ट्री विच सर्व्ड एज अ क्रूक फॉर दिस प्री हिस्टोरिक शेफर्ड. We remained profoundly still, speechless with surprise, but we might at any moment be seen by him. Nothing remained for us but instant flight. Come, come, I cried, dragging my uncle along, and for the first time he made no resistance to my wishes. A quarter of an hour late, we were far away from the terrible monster. Now that I think of the matter calmly, and that I reflect upon it without any emotion, now that months, years have passed since this strange and unnatural adventure befell us, what am I to think? What am I to believe? No, it is utterly impossible. Our ears must have deceived us, and our eyes must have cheated us. No human being could be any possibility have existed in the subterranean world. Now in this para, Hans also says that like whatever the thing he was carrying in his hand was a branch of tree, जिसकी मदद से वो यह बतलाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे प्री हिस्टोरिक शेफर्ड जो है किस वेपन की मदद से जो है वो ऐसे जाइगेंटिक मैस्टोडॉन्ट्स को हैंडल किया करते थे. और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद वो बिल्कुल निशब्द, स्तब्ध और आश्चर्य से भर गए. नाउ वी कैन से वो जो क्षण उनके आंखों के सामने से गुजरा था, या जो क्षण जो मोमेंट उन्होंने देखा था, वो नथिंग रिमेंड फॉर अस बट इंस्टेंट फ्लाइट. वो उनके दिमाग में जो है कुछ समझ में नहीं रहा था, वो जस्ट इट वाज लाइक इंस्टेंट फ्लाइट आ रहा था और ऊपर से गुजर रहा था. देन आफ्टर हैंस जो है चिल्लाता है कि आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, एंड ही एक्चुअली अपने अंकल लाइक प्रोफेसर अर्नेस्ट सेकंडसम को जो है वो आगे खींचते हुए ले जाता है. और यह पहली बार था जब प्रोफेसर जो है उन्होंने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया, उन्होंने अवरोध नहीं जाहिर किया अगेंस्ट द विश ऑफ हैंस. करीब 15 minutes, about 15 minutes later, what they saw, actually they were far away from the terrible monster. 15 minutes के बाद जो है उनको ऐसा एहसास हुआ कि दे आर नाउ फार अवे फ्रॉम द टेरेबल मॉन्स्टर्स. वो काफ़ी दूर चले गए उन लोगों से, और अब जो है वो बिल्कुल शांति से बैठ करके जो भी चीज़ें उनकी आंखों के सामने आई थी उसको वो दे वांट टू रिकॉल, दे वांट टू उसके बारे में विचार करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचना चाहते हैं. अब चूँकि वो समय जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, बीतता जाता है, और ऐसे महीनों निकल जाते हैं, साल निकल जाता है, और वो अभी भी वो जो स्ट्रेंज और अननेचुरल एडवेंचर इनके सामने में जो दिखा था उसके बारे में वो विचार करते हैं, क्या सोचा जाए उसके बारे में, या फिर क्या विश्वास किया जाए उसके बारे में. एंड लास्ट में उनका डिसीजन यही होता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है. जो उनके कानों ने सुना वह उनके कान का धोखा था, जो उन्होंने आँखों से देखा वह एक धोखा था, क्योंकि ऐसा कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है कभी इस सबटेरेनियन वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता था. No generations of men could inhabit the lower caverns of the globe without taking note
of those who peopled the surface without communication with them. It was folly, nothing else. This animal surpassed in height all things known to modern science, a living man, and with him a whole generation of gigantic animals buried inside the earth. It was too monstrous to be believed. एंड हंस के मुताबिक ऐसा कोई भी जनरेशन इंसानों का अभी तक लाइक इनहैबिट नहीं हुआ है केवर्स में या ग्लोब के आसपास में कहीं भी, जिसके बारे में नोट किया गया हो या नोट लिया गया हो, जिसके बारे में लोग जानते हो कि इस सतह पे, इस धरती पे उनका कभी एग्जिस्टेंस भी रहा हो. इट वाज एक्चुअली फॉली, नथिंग एल्स. यह एक लाइक आँखों का धोखा था और कुछ नहीं था, क्योंकि जो उन एनिमल्स की जो हाइट थी वो आज के मॉडर्न साइंस के हिसाब से उसको भी उसने क्रॉस कर लिया था. जो लिमिट बताया जाता है मॉडर्न साइंस में, जिसको मेज़रमेंट दिया जाता है, वो उसको भी सरपास कर चुका था. दैट्स वाई दिस वाज द सॉलिड रीज़न. इट वाज अ फॉली. इवन जो लिविंग मैन थे या फिर उनका जो होल जनरेशन था, जनरेशन ऑफ जाइगेंटिक एनिमल्स, वो सारे पहले के जो प्री हिस्ट्री जो हमारे थे वो सारे बरीड हो चुके थे इनसाइड द अर्थ. और अब इन बातों को विश्वास नहीं किया जाएगा या नहीं किया जा सकता है. So dear student, this was the second part of the chapter. We will now move to the third part of chapter next day. Till then, bye, take care and have a nice day. Thank you.